Hello, welcome to my channel. In this video, we are going to solve few important questions for CBSE 2026 physics. Okay, so this is the first question. A rectangular loop 4 centimeter, 5 centimeter of wire, okay, carrying current of 0.25 ampere is placed in a magnetic field P 0.20 J cap plus 0.50 K cap Tesla, such that the outward unit vector normal to the plane of the loop is 0.80 I cap minus 0.60 J cap. Calculate the magnetic moment M of the loop and the torque tau acting on the loop. Okay, so this is a simple question. Okay, if you want to if you want to solve it, please pause the video and try it out. Okay. Okay, so let us solve this problem. Okay, so let me write all the data. So let me open the new page. Sorry, let me open the new page. Okay, so first of all, I'll write all the data. So here B is given, that is the rectangular loop of length. The length is given. So length is 4 centimeter. So I can write 0.4, 0.04 meter. Okay. And width uh, is given to be 5 centimeter. So I can write 0.05 centimeter, 0.05 meter. Fine. I can convert it into meter. Okay. Now carrying current I is given. So I is 0.25 ampere and the magnetic field is given in the vector form. It is 0.20 j cap plus 0.50 k cap. Okay, that is Tesla. Such that the outward unit vector normal to the plane of the loop is 0. That is the n cap is given. What is n cap? So area, basically this is the area, and the direction perpendicular to the area vector is called n cap vector, and that is given to be 0.80 I cap minus 0.60 j cap. Fine. So this is our data, and now we have to find out uh, the magnetic moment. So magnetic moment is given by the formula, uh, basically I A vector. Okay, so magnetic moment is a vector quantity, and here A is also a vector quantity, so we have to find out in a vector form. Okay, so current, so let us find out what is this area vector. So area vector is given by, that is area, that is the magnitude with the direction, and you know the direction of any area vector is always perpendicular to the plane. Okay, so this perpendicular to the plane direction is n cap, and that is already given. Okay, so area is length into breadth, and this n cap. So I can write this 0.04 multiplied with the 0.05. Okay, and then this n cap is given 0.80 I cap minus 0.60 j cap. Okay, now what we can do, we can multiply. So you know that is a simple multiplication, but I will use calculator to save the time. Okay, so this is 0.04 multiplied with the 0.05 and then multiplied with the 0.8. Okay, so it is coming out to be 0.0016 I cap and minus 0.04, 0.05 into 0.6. So this one is 0.0012 J cap. So ये हमारे पास एरिया वेक्टर आता है. Okay, now magnetic moment is given by I into area vector.
सो आई इज 0.25 और हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे विद दिस एरिया वेक्टर. सो 0.0016 आई कैप minus 0.0012 j cap. And now you can multiply this. Okay, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सो 0.25 0.25 multiplied with the 0.0016. So this is 0.0004 I cap, and then 0.25 multiplied with the 0.0012. So it is coming out to be 0.0003 J cap. Okay, so this is magnetic moment. Now I can write in this form also, that is 4 I cap minus 3 J cap multiplied with the 10 to the power minus 4. Okay, and what is the unit? So unit is basically ampere meter square. Ampere meter square. So this is our answer. Okay, you can also convert this into the magnitude. Okay, by taking the square of 4 into 10 to the power minus 4 and 3 into 10 to the power minus 4 and taking into under root. Okay, so you can find out in magnitude form also. Now the second question is, what is the torque? The torque, how to calculate the torque? So torque is calculated by new base. Let me open the new base. So torque is calculated by the formula, that is torque is equal to M, this M cross B. Okay, M we already know, this already we know. So ये हमारे पास है 4i cap minus 3j cap. Okay, and this cross 10 to the power minus 4, and then basically this one is cross multiplication with the um, basically we can write, wait, we can write in this form, that is, just a second. Yes, so cross with the b vector. So where is the b vector? B vector is given to be, we can copy this from here, copy, and then I will paste it here. Fine. So wait, yes. So this is our value, that is a torque, and then yes, this is the cross multiplication. Okay, cross multiplication, and then there is a multiplied with the 10 to the power minus 4 that was included with the magnetic moment vector. Okay, so there is a 4 and there is a 3. So basically here it is 3. Okay, 3. And now you know how to calculate the cross multiplication. So cross multiplication कैसे calculate करते हैं? So basically we write like this: I, J and K, and I is 4, J is 3 and K is 0. Here it is minus 3. Okay, and then I is 0, J is 0.2 and K is 0.5. Okay, so we are calculating torque. So we are calculating torque. Okay, so here I is given to be, so 1.5 minus 1.5, and this one is 0. Okay, minus J, and this is 2. 4 into 0.5 is 2. Okay, and plus K cap, and then again cross multiplication, this one and this one.
So this is 0.8. Okay, now I can write as minus 1.5 I cap, okay, and minus 2 j cap plus 0.8 k cap, okay, with this 10 to the power minus 4. And what is the unit? So unit is basically unit of mm, magnetic moment is ampere meter square, and this unit is Tesla. So Tesla meter ampere square. Sorry, Tesla ampere meter square. That is the unit. Okay. So I hope you understood this question. तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो प्लीज आप इसको देख कर जाओगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कैसे सॉल्व किया गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन है ये, जो जो मैंने ये मैंने आई थिंक बोर्ड से ही उठाया है, पीवाईक्यू से उठाया है मैंने। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। ए गैल्वेनोमीटर हैविंग ए कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 48 ohm shows full scale deflection for a current of 2 ampere. ओके, मतलब 2 एम्पियर करंट जब गैल्वेनोमीटर में जाता है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। ओके, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मीटर ऑफ रेंज 0.10 एम्पियर बाय कनेक्टिंग। तो देखो, सबसे पहले बात समझो कि गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर को हम मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वी कैन कनेक्ट अ शंट पैरेलली। ओके, हम पैरेलल एक शंट को कनेक्शन करके हम इसको बेसिकली ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गैल्वेनोमीटर हैविंग ए कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 48 ओम, मतलब कि आपको ये समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं। ओके, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। ओके, किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक पैरेलल कनेक्शन, एक शंट को ऐड करते हैं पैरेलली। ओके, सो यहाँ पर दैट मीन्स कि ये जो बी और सी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, दैट इज इन पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, इन पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। ओके, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब चलो बात करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर नोटिस करो आप, तो यहाँ से जो करंट है ना, वो करंट यहाँ पर जा रहा है। ओके, सो ये जो करंट है वो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है, दैट इज ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। मतलब कि इसमें जो करंट जा रहा है उसको आईजी बोलेंगे। यानी इस आईजी की वैल्यू दी गई है। इस आईजी की वैल्यू कितनी दी गई है? सो एज यू कैन सी हियर, इस आईजी की वैल्यू दी गई है हमारे पास 2 एम्पियर। ओके, फाइन, सिंपल है, दैट इज गिवन 2 एम्पियर। और जो रेजिस्टेंस है ना इस गैल्वेनोमीटर का, दैट इज गिवन टू बी 48 ओम। ओके, तो आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है एट 2 एम्पियर। सिंपल है। तो इसमें आईजी करंट जो जा रहा है वो हमारे पास 2 एम्पियर जा रहा है। और हमें कितना करंट चाहिए होगा? हमें अमीटर में कितना करंट चाहिए होगा, मतलब कितना रेंज चाहिए होगा? डेट इज 10 एम्पियर। मतलब जो करंट जो यहाँ से जो जा रहा है ना, जो करंट यहाँ से जा रहा है वो 10 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। मतलब कि जो ये जो संट है, ओके, तो इस संट को मैं बोल देता हूँ आर एस, सिंपली आर एस बोल देता हूँ। दैट इज द रेजिस्टेंस जो हमने कनेक्ट किया है पैरेलली। ओके, इसको बोलते हैं संट रेजिस्टेंस। सो दिस आर एस जो हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज कॉल्ड संट रेजिस्टेंस। ओके, अब आपको पता है कि इस वाले में अगर यहाँ से आई करंट जो जा रहा था, तो इसमें आई जी करंट चला गया, तो इसमें कितना करंट जाएगा? इसमें जाएगा आई माइनस आई जी। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है तो यहाँ पर जो वोल्टेज होता है और यहाँ पर वो जो वोल्टेज होता है सेम होता है। दैट मीन्स वोल्टेज इसमें जो होगा वो कैसे लिखेंगे? आई जी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? करंट इनटू वोल्टेज। ये होता है, सॉरी, जो
जो V इजिकल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यानी करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वोल्टेज मिलेगा। तो जब ऊपर वोल्टेज निकालोगे और नीचे वोल्टेज निकालोगे तो आपको सेम मिलेगा, बिकॉज दैट इज द पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है। ओके, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दैट इज आई जी मल्टीप्लाइड विद द आर जी। ओके, बेसिकली यहाँ पे कैपिटल जी लिखूंगा, ये कैपिटल जी होगा बेसिकली। कैपिटल जी मतलब जो गैल्वेनोमीटर में जो जा रहा है, ओके, जो करंट जा रहा है। एंड देन ऊपर कितना वोल्टेज होगा, डेट इज आई माइनस आई जी अपॉन आर एस। हमें निकालना आर एस, ठीक है, हमें निकालना है क्या, आर एस। तो आर एस क्या हो जाएगा, डेट इज आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, राइट। तो यहाँ सब कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली। आई जी की वैल्यू हमारे पास 40, आई जी की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2 एम्पियर, एंड दिस आर जी की वैल्यू दी गई है 48, एंड देन आई की वैल्यू दैट इज 10 माइनस 2। सो यहाँ से आप सॉल्व करके, सो दिस इज 2 इंटू 48 एंड दिस इज 8। ओके, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, मतलब आर एस की वैल्यू 12 ओम आ रही है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ये है सी। ओके, तो दैट इज आर एस की वैल्यू 10 12 ओम। ओके, आपको सिंपल समझ में आया। यहाँ से जो करंट पास हो रहा है उसमें हमने बोल दिया कि ये जो आईजी करंट जो इसमें जा रहा है दैट इज 2 एम्पियर, जिसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। मतलब कि आप जब यहाँ पर जब आप 2 एम्पियर करंट जा रहा है ना, तो उससे इसमें जो करंट शो कर रहा है ना, इसमें जो करंट का रेंज शो कर रहा है दैट इज 8 ओम, 10 ओम। ओके, तो 10 ओम इज द मैक्सिमम, 10 ओम इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली यहाँ से 10 ओम, यहाँ से 10 एम्पियर यहाँ से करंट पास किया, और जिसमें से 2 एम्पियर करंट इसमें चला गया, तो इसमें हमारे पास चला जाएगा दैट इज 8 एम्पियर। ओके, 10 - 2 8 एम्पियर। ओके, सो ये यहाँ पर लिखा गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ओके, देन मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस सेपरेट्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज स्पेस ऑफ रिफ्लेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 and 4/3। ओके, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। तो पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर? सो पावर इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हम फोकल लेंथ निकालेंगे एंड देन उसका यूज करके हम पावर निकालेंगे। ओके, तो बेसिक है। ओके, बेसिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो आपको पता है कि फॉर स्पेरिकल सरफेस, फॉर स्पेरिकल सरफेस दिस इज अ कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस ऐसा होता है। ओके, एंड इसका दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस का दिया हुआ है डेट इज आर इज गिवन। तो इसका आर क्या होगा, डेट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बट ये जो 10 सेंटीमीटर होगा ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब ये जो होता है ना, ये जो मटेरियल होता है इसको हम बोलते हैं म्यू 2, और ये हमारे पास म्यू 1 होता है। ठीक है, तो म्यू 2 की वैल्यू दी गई है डेट इज 4/3, और म्यू 1 की वैल्यू दी गई है डेट इज 1। ओके, मतलब एयर है या वैक्यूम बोल सकते हैं। फाइन, अब मैं यूज करूंगा ये वाला फॉर्मूला जो हमें पता है डेट इज म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम स्फेरिकल सरफेस के लिए यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे म्यू 2 की वैल्यू है डेट इज 4/3। ओके, 4/3, और ये जो v है ना, अब देखो ध्यान से, आप देखो यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि ये जो u है ना, दिस u, ओके, तो ये हमारे पास जो u है, अ, ये जो u है, ये देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर नोटिस करो आप कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास कि हमें बताना है, हमें फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये पता कर लें कि ये कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है,
तो ये हमारे पास फोकल लेंथ हो जाएगा। ओके, अगर ये पैरेलल लाइन आ रही है और ये कहाँ पर कन्वर्स कर रही है, तो जो डिस्टेंस पर कन्वर्ज कर रही है ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, जिसको हम v बोल सकते हैं। तो मतलब मैं v को अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर कोई लाइट आ रही है जो कि पैरेलल है, ओके, मतलब u हमारे पास इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, ओके, और वो लाइट यहाँ पर मर्ज कर रही है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मर्ज कर रही है। सो हमारे पास जो ये जो v मिलेगा ना, उसको मैं फोकल लेंथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स u हमारे पास, v हमारे पास क्या हो गया, v हमारे पास सिंपली f हो गया, और हमारे पास म्यू वन की वैल्यू तो 1 दी गई है, एंड हमारे पास u क्या हुआ, क्योंकि लाइट इनफाइनाइट से आ रही थी तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो सिंपली यहाँ पर इनफाइनाइट रख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1, तो दैट इज 4/3 माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 10। ओके, तो ये वाला पार्ट जो होगा जीरो हो जाएगा, दिस इज जीरो। ओके, तो ये जीरो हो गया। अब थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, एंड देन उसके बाद आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4/3 f, एंड दैट इज इक्वल टू, दिस इज 1/30, एंड देन इस यहाँ से कैंसिल कर 10 हो जाएगा, सो दिस f इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो ये हमारे पास आ रहा है 40 सेंटीमीटर, बट अभी हमें क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये 0.4 मीटर हो जाएगा, और मुझे पावर निकालना है, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है पावर इज इक्वल टू फोकल लेंथ इन मीटर। ओके, तो दिस इज 0.4 मीटर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5, और ये मीटर इनवर्स लिख सकते हो या फिर इसको 2.5 डायोप्टर लिख सकते हो, बिकॉज डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर। ओके, आई होप आपको समझ में आया ये कैसे किया गया। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़े अच्छे से देख लो आप। ओके, चलो, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जैसे एक्सप्लेन व्हाई टू फ्लैश लाइट्स हेल्ड क्लोज टुगेदर डू नॉट प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन ए डिस्टेंट स्क्रीन। ओके, कमेंट में आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। बेसिक है, सिंपल है, आप थोड़ा सोचो कि इंटरफेरेंस पैटर्न कब नहीं होता है। ओके, एक हिंट है, आप सोचो इस पर, एंड देन इसका आंसर आप करो, ठीक है। एक और ये क्वेश्चन है, व्हाई इज इट सो easier to perform interference experiment with a laser than with a ordinary light source। अगेन ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है ये कोहेरेंट लाइट से छुपा हुआ है, कोहेरेंट लाइट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें छुपा हुआ है। तो अगर आपको पता है देन कमेंट करो, लेट मी सी कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ओके, फिर ये सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होता है, जिसका सबसे कम, जिसका सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होगा, जिसका सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा। ओके, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ उसका ज्यादा होगा जिसका सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है, हीट वेव्स, लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। थोड़ा सोचो एंड आंसर करो। अगेन कमेंट में इसका सिक्स वाले का आंसर आप बताओ। ओके, सिंपल है। ओके, थोड़ा सोच के आंसर बताओ। रेडियो वेव्स डिफ्रैक्ट अराउंड, इसको भी आप पढ़ो एक बार, एंड देन इसका आंसर आप कमेंट पे आप बताओ। ओके, सेवंथ वाले का। चलो, ये एट वाला क्वेश्चन जो है ना, ये इफ ई टाउ एंड एम रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन एंड डेंसिटी, ओके, represent the electron density, relaxation time, okay, and the mass of electron, then the resistance R of the wire of length L and area of cross section A will be। तो अगेन इसका भी आंसर आप सोच के बताओ क्या होगा। ये सिंपल है, थिंक करो क्या हो सकता है इसका आंसर, एंड नहीं होता है तो मैं बताता हूँ। ओके, सो कमेंट में इसका आंसर करो। ओके, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक ये भी एक आसान क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर सकते हो। करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ मेटालिक वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 into 10 to the power minus 6 meter square. If the density of the aluminum conductor is 2.7 gram per centimeter cube,
Considering aluminum gives 1 electron per atom for conduction, then find the drift velocity of electron if the molecular weight of the aluminum is 27 ग्राम. ओके, तो इसका जो आंसर है ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.